So today we will start Laplace equation. This is an example of elliptic equations in which you have two imaginary characteristics. This equation is also known as steady heat equation, and it is given by French mathematician Pierre Simon Laplace. So what is heat equations? So steady means that in heat equation, if you have ut equals to 0, then what you got? Ut equals to uxx, so uxx equals to 0. Okay, so this is one dimension Laplace equation. And in two dimension, this is uxx plus uyy equals to 0. This is two dimensional Laplace equation. So we use the notation. This notation is called Laplacian. Okay, so this is gradient dot gradient, and you know what is gradient? Gradient is this. Okay, so you did take dot product with same. Okay, so this will be second derivative del 2 by del x square प्लस, ठीक है, वन डायमेंशन है तो ये क्या बन जाएगा, वन डायमेंशन में दिस इज जस्ट दिस, एंड इन टू डायमेंशन दिस इज, and so on. Okay, so this operator denoted by delta, this is called Laplace operator, or simply we say Laplacian. Laplace operator or Laplacian. And a solution of Laplace equation is called a harmonic function. So if you see one dimension, so in one dimension you just have uxx equals to 0, and on integrating you got a plus bx. Okay, so this is just a simple solution in one dimension, and it does not give any clue that what will happen in higher dimension. So this is just simple a linear combination of constant 1 and x. Okay, so this is steady heat equation, but this equation is important in higher dimension like 2, 3, etc. So we will study this equation in two dimension, and the non-homogeneous version, the inhomogeneous Laplace equation, which is denoted by Laplacian of u equals to f, where f is a given function, and this equation is known as Poisson equation.
Okay, so this is called Poisson's equation, which is non-homogeneous Laplace equation. And we have used a word harmonic function for solution, and this is related to complex variable. And for example, you have studied analytic functions of a complex variable. Okay, so the real and imaginary part of a complex analytic function, they both satisfy the Laplace equation. That is, if we have z equals to x plus iota y, and you have a analytic function fz, which is u plus iota v. Okay, so you know what are analytic functions. They are differentiable in a set. Then the necessary condition that fz is be analytic. क्या थी necessary condition? बताओ. When fz is analytic, CR equation hmm? satisfied. CR equations are satisfied, Cauchy-Riemann equations. Equations be satisfied. And what are those equations? Ux equals to Vy and Vx equals to minus of Uy. And differentiate it twice. मान लो फर्स्ट को कर दो आप x के सेंस में, you got Uxx equals to Vyx और Vyx और Vxy इक्वल लिखते हो तो सेकंड से आप सेकंड को आप y के सेंस में कर दो. So Vxy equals to minus of Uyy. And if you take first and last, you got Uxx plus Uyy equals to 0. Okay, so similarly, I can write Vxx, सेकंड को इसको डिफरेंशिएट कर दो x के सेंस में, that will be minus Uyx, and Uyx equals to Uxy, that is equals to Vyy. Okay, so Vxx plus Vyy equals to 0. So in variable u and v, you can see that this u and v, they satisfy Laplace equation. Okay, so real and imaginary part. Part satisfy Laplace equation, and you can see that you can say that the real and imaginary parts of analytic function, they are harmonic.
There are many another example from fluid dynamics, steady fluid flow. So that is also Laplace equation. And stationary heat equation, you can take heat equation in higher dimension, like you can take heat equation in 2 dimension. Okay, so ut equals to some uxx plus uyy. So if this is steady means टाइम के सेंस में कोई चेंज ना हो. टाइम के सेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो टाइम डेरिवेटिव विल डिसअपीयर. सो यू गॉट uxx plus uyy equals to 0. That was the first origin of Laplace equation, and it originated in many other fields. And since it has similarity with heat equation, so likewise heat equation, this also satisfies the maximum principle. Okay, as we have seen that heat equation satisfy maximum principle. So what that principle says, the maxima will occur on boundary. Okay, same situation is here. Okay, so that harmonic function, they also uh, obey maximum principle, and which is similar to maximum principle for the heat equation. So I am not going to prove here, proof is quite similar, you have to do it. बिल्कुल सिमिलर है. वहां पे भी हमने लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया था. फिर हमने v डिफाइन किया था u प्लस सम एप्सिलॉन. यहाँ पे भी सेम वे में करना है. एंड देन यू अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन दैट सेटिस्फाई. इसमें आया था ना हीट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आया था. यहाँ पे भी सेम है. प्रूफ इज जस्ट क्वाइट सिमिलर. ठीक है. सो मैक्सिमा और मिनिमा भी आप कह सकते हो. सो एक्सट्रीम वैल्यू अकर ऑन बाउंड्री. सो दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल for Laplace equation. So let uxy be a solution of Laplace equation. Laplacian of u equals to, I'm taking it in 2 dimension, equals to 0 in a bounded region D with boundary delta D. Okay, so you have some bounded region. Okay, so and maybe some circular region. Okay, and similar to maybe you have rectangular region with boundary delta t, and we denote closure of d bar equals to domain plus its boundary. Then the maximum and minimum values of u attained on boundary.
So maximum and minimum of U attain on boundary. यही था ना उसमें, हीट में भी प्रिंसिपल सेम था, याद है हीट वाला? बैठे हो? Yes, sir. नहीं, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, मेरी आवाज आ रही थी पहले? Yes, sir. ओके, तो बोल दो कि पढ़ा था प्रिंसिपल ये। Yes, sir. बाकियों ने भी पढ़ा था? Yes. तो प्रूफ देख लेना, नोट्स में दे दूंगा, चाहे आप स्ट्रॉस की बुक से पढ़ लेना, और इट्स जस्ट सेम, proof is similar. So that is maxima of d bar, ठीक है, ऑन पूरे रीजन में जो मैक्सिमा है, वो मैक्सिमा किस पे मिलेगा आपको? बाउंड्री पे। दिस इज जस्ट ए फॉर्मल वे टू राइट, ठीक है। एंड सेम मिनिमा भी, मिनिमा दैट इज आल्सो अटेन्ड ऑन बाउंड्री। और जब मिनिमा प्रूफ करना हो ना, तो u को माइनस u से रिप्लेस कर देना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सो टू मिनिमम प्रिंसिपल replace u with minus u. And now I am going to, of course, I am going to discuss maximum principle for Poisson equation. Poisson मतलब non homogeneous. So let D be a bounded domain in R2. Any bounded domain, like you have a circular region, ठीक है, कैसा भी हो, सर्कुलर हो, एलिप्टिक हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन हो, स्केयर हो, एनीथिंग, ठीक है। बाउंडेड डोमेन इन R2 with boundary delta D, then the maximum values of solution U of Poisson equation, इसको Poisson ही बोलते हैं, ठीक है, पॉइजन नहीं बोलते, ठीक है, फ्रेंच नेम है ये। सो दिस इज Poisson। जैसे अंग्रेज हमारे नाम बोलते गलत बोलते हैं ना कई बार, बट नाम तो हमारा वही है ना, चाहे आप इंग्लिश में बोलो। सर ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर ये थ्योरम का एक बार स्टेटमेंट फिर से दिखाना। Let D be a bounded domain in R2 with the boundary, then the maximum value of solution U, ठीक है, यस सर, थैंक यू। of Poisson equation attain on, ये कह लो क्रोरली है, पिछले मेन थ्योरम तो नहीं है, so this is just follow from that theorem on boundary if fxy is positive on D and the minimum of U
boundary if fxy is negative in D. Can you prove it? This is just 3-4 line proof. मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन से पहले लिख लेना जो थ्योरम में दे रखा है। अब यू सॉल्यूशन है, सो अब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो यू इज कंटिन्यूअस। रीजन आपका क्लोज है, यानी क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन। तो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम अटेन करेगा, आपका क्लोज सेट पे है ना, सो इट मस्ट अटेन, कंटिन्यूस है, सो इट मस्ट अटेन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम इधर इन डी और बाउंड्री, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना आपको मैक्सिमम। सो हमने बाउंड्री पे शो करना है, सो सपोज दैट मैक्सिमम is assumed or taken at a point। हम बाउंड्री पे नहीं मानते, हम मान लेते हैं डी डोमेन के अंदर मिले, ठीक है। दैट इज अंदर कोई पॉइंट है, जो भी आपका रीजन है उसके अंदर कोई पॉइंट है x0 y0, वहां पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। और ये मैक्सिमा क्या है, पूरे रीजन में है उसका। अब पहली कंडीशन है, वो कहता है कि मैक्सिमा मिलेगा अगर बाउंड्री पे मिलेगा, अगर f पॉजिटिव है। सो सपोज, यानी कि ये कंडीशन है f पॉजिटिव है, सपोज f इज पॉजिटिव इन D, देन एट x0 y0, so we must have, मैक्सिमा की पहचान क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो यू एक्स एक्स नेगेटिव होगा। अब यहाँ जीरो भी हो सकता है, जीरो वाले केस को आपको सेपरेट देखना पड़ेगा ना, उसी पे मिलेगा मैक्सिमम। और सेकंड डेरिवेटिव यू वाई वाई नेगेटिव होगा, और जीरो वाला केस आप अलग से टैकल करते हो। मतलब अगर मैक्सिमा होगा तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे, है ना। ये आपका टेस्ट है। अब इक्वेशन आपकी क्या थी, अब इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा हर एक पॉइंट पे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, यू एक्स एक्स, ये इक्वेशन है आपके पास, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू एफ। ये पॉजिटिव है, तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये नेगेटिव और जीरो है, तो पॉसिबल नहीं है ना, फ्री नहीं। सो देयरफॉर अब सिंस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज जो पीडी है आपकी ये है, अब एफ पॉजिटिव है तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई ये भी पॉजिटिव होगा। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव होगा, और अगर मैक्सिमा अंदर मिलता है तो ये कहता है कि इनका जो सम होगा वो नेगेटिव या जीरो होगा। ओके, सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। So hence the maxima of U must occur
on boundary. Second case minimum का है. So to show that the minimum value, minimum of u attains on बाउंड्री. वहां पे कंडीशन क्या है, वो कहता है कि एफ नेगेटिव हो. नेगेटिव इन डी. So we just replace u with minus u in the preceding arguments. And this is equivalent to replace f with minus f. ठीक है, f नेगेटिव है तो माइनस f पॉजिटिव होगा, तो माइनस u attain its maxima on boundary. So by following the same argument you can prove the previous one. Sorry, you can prove the minimum value. और जैसे हमने हीट में यूज किया था, आप इस प्रिंसिपल को यूज करके you can prove uniqueness and you can prove stability. So these next two theorem, they are also same that we have studied in heat equation. If you recall heat equation, we prove uniqueness by maximum principle and stability by maximum principle. So firstly, I am going to state uniqueness. Let D be a bounded domain in R2 with boundary delta D. The solution of Dirichlet problem. अब Dirichlet problem किसको बोलते हैं? Dirichlet problem पढ़ा था आपने हीट में, हीट इक्वेशन विद कंडीशन, तभी आप यूनिकनेस की बात करते हो ना. इनिशियल कंडीशन आपके पास है, देन यू टॉक अबाउट यूनिकनेस. सो व्हाट इज Dirichlet प्रॉब्लम? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल या बाउंड्री जो भी है. तो यहाँ पे तो टाइम डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है, इनिशियल नहीं है. यहाँ पे हीट इक्वेशन में था इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन. So there is no time, we don't have any initial condition, we have दो वेरिएबल x और y हैं, so we have boundary condition. So what is Dirichlet problem? So you have Laplacian of u equals to fxy non-homogeneous in D, ये तो इक्वेशन हो गया, और uxy equals to gxy on boundary, ये बाउंड्री कंडीशन हो गया. So the solution of Dirichlet problem, if it exists, then it is unique. Existence की बात नहीं हम करते, that is a difficult task to prove in PD. So we say if it exists, it is unique. कैसे प्रूव किया था हमने? हीट में भी किया था, वेव में. U minus V लेके सर, U और V दो solutions. So you take two solution, okay? That U and V
आर टू सॉल्यूशंस। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन आएगा? फिर क्या लिखते थे आप? एक W मानते थे ना, वो क्या मानते थे आप? U और V का U डिफरेंस। minus V. हाँ अच्छा, बस देन V, सॉरी देन W सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा? Sir, equation Laplace boundary conditions. हाँ, तो देखो U सेटिस्फाई करता है, तो आपके पास U सेटिस्फाई करता है, तो ये चीज आ जाएगी, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू एफ। वी भी सेटिस्फाई करता है, तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल्स टू एफ, दोनों को माइनस कर दो तो डब्ल्यू बन जाएगा। माइनस कैसे करोगे? यू एक्स एक्स माइनस वी एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस वी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो। देन डब्ल्यू सेटिस्फाई, so then W satisfy Laplacian of W equals to 0 as, अब कैसे सेटिस्फाई करेगा ये? आप ये लिखोगे ना, यू एक्स एक्स माइनस वी एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस वी वाई वाई इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया, ये डब्ल्यू एक्स एक्स बन गया, ये डब्ल्यू वाई वाई। होमोजेनियस को सेटिस्फाई करेगा ना W, दोनों का जो डिफरेंस होगा। और ये लीनियर इक्वेशन में हमेशा ट्रू होता है, आप ओडी बीडी सब जगह ना, जो डिफरेंस है दैट विल सेटिस्फाई होमोजेनियस। और बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी? हम्म 0 0 sir. हाँ, अब यू और भी दोनों सोल्यूशन है ना, तो दोनों जी बन जाएंगे बाउंड्री पे। सो डब्ल्यू इज जीरो ऑन बाउंड्री, और दिस इज अंदर डोमेन के अंदर। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है? मैक्सिमा बाउंड्री पे मिलेगा, और वो कितना है? बाउंड्री पे जीरो बन गया ना, तो बाउंड्री पे है तो यही मैक्सिमा है। तो डब्ल्यू जीरो रहेगा इन डोमेन। डब्ल्यू जीरो है तो इसका मीनिंग यू माइनस वी जीरो है, और इसका मीनिंग क्या है? यू इक्वल्स टू वी। बिल्कुल सेम है जैसे हमने हीट में किया था, मैनी टाइम वी डिड इन वेव हीट एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट थ्योरम, स्मॉल रिजल्ट, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा था। सॉल्यूशन ऑफ डिरिचले प्रॉब्लम, जो अभी लिखा था हमने, लैप्लासियन ऑफ यू इक्वल्स टू एफ इन डी एंड बाउंड्री पे u इक्वल्स टू g of xy on boundary. The solution of Dirichlet problem continuously depend on the boundary data. प्रिसाइज तो अब ये नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। The solution of Dirichlet, हीट में क्या लिया था, ध्यान है आपको? कंटिन्यूस स्टेबिलिटी में दो प्रॉब्लम लिखी थी ना हमने, डेल्टा u इक्वल्स टू f इन d और u इक्वल्स टू g ऑन बाउंड्री। और एक दूसरी प्रॉब्लम लिखी थी आपने, u1 u2 लिखना, u1 u2 लिख लो, uv लिखना, uv। एक दूसरी प्रॉब्लम लिखा था आपने, और उसमें बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट है। द सॉल्यूशन ऑफ डिरिचलेट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हैं। कंसीडर
Dirichlet's problem to prove that the solution continuously depends on बाउंड्री डाटा। अब इसका मीनिंग क्या है? कंटिन्यूसली डिपेंडेंस का मीनिंग है कि अगर u और h सेम होंगे, और यू कैन से सॉरी g और h का डिफरेंस अगर लेस देन है तो u1 और u2 भी क्लोज होंगे। ठीक है, अगर मतलब बाउंड्री कंडीशन सेम है तो ये सॉल्यूशन भी सेम है। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिपेंडेंस ऑन डाटा। So prove, so let u1 and u2 are the solutions of these two problems. Laplacian of u1 equals to f in D, and boundary u1 equals to g, and इस लेक्चर के बाद आप देखना हीट वाला सेम प्रूफ से बिल्कुल सेम। So then the functions, so then the function, फिर हम एक फंक्शन v लिख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस, दैट सॉल्व Laplacian of v इक्वल्स टू 0, जैसे हमने पिछले में किया था। Laplacian of v इक्वल्स टू 0 इन डोमेन D, और बाउंड्री पे हो जाएगा दोनों का डिफरेंस g माइनस h ऑन बाउंड्री। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल कैसे लगाओगे? मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल क्या कहता है? जो भी मैक्सिमम मिलेगा बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस डिपेंडेंस का मीनिंग क्या है कि हम क्या कर देंगे कि इन दोनों को बिल्कुल पास लेके जाएंगे g और h। अब इनका डिफरेंस स्मॉल होगा, लगभग 0 होगा, यानी कहने का मीनिंग है बाउंड्री पे ये लगभग 0 अगर हो तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है? यही मैक्सिमा है, तो अदर पॉइंट्स पे भी वो 0 होगा। कहने का मीनिंग है अगर g और h क्लोज होंगे तो इनका डिफरेंस 0 होगा, तो v भी 0 होगा। v 0 होगा तो u1 और u2 भी क्लोज होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो कैसे लिखोगे लैंग्वेज में इसको? टेल मी हाउ टू राइट। हाँ जी, ये लिख दो मैथमेटिकली, इफ g माइनस h लेस देन एप्सिलॉन and maximum or minimum principle says that maxima is attained on boundary. So this implies जो v है that is also less than epsilon। अब v का मीनिंग क्या है? u1 minus u2 is also less than epsilon। ठीक है, अगर ये बिल्कुल पास होंगे, इनका डिफरेंस 0 होगा, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है? यही मैक्सिमा है। अब ये मैक्सिमा है तो अब v मॉड लिया हमने, v पॉजिटिव है तो सारी जगह ये, अगर ये डिफरेंस 0 है तो पूरा v ही 0 है। अगर v ही 0 है तो इसका मीनिंग है u1 और u2 ये भी बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे के। फॉर ऑल
xy into closure of D. This completes the proof. Any doubt? और एग्जाम में अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है ना. ये तो थ्योरेटिकल बात हो गया कि मैक्सिमम मिलेगा, बट प्रैक्टिकली हाउ यू फाउंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे एक एग्जांपल है ये कहता है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल check the validity of maximum principal for the function 1 minus x square minus y square divided by 1 minus 2x plus x square plus y square in the disk. यहाँ पे जो क्लोज बाउंडेड रीजन होगा ना, डिस्क डिस्क टाइप है ये. एक्सप्लेन. तो क्या रीजन है ये? सर्कुलर डिस्क डिस्क है ये आपका एंटायर डोमेन सारा सर्कुलर डिस्क. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1 सर्कुलर डिस्क. अब ये कहता है कि इस पे आप एक्सप्लेन करो इसके मैक्सिमा के बारे में. देखिए आप f को पहले आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसमें ये टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाउंड्री पे 1 फिट कर सकते हो ना सिंप्लीफाई करने के लिए. तो ये एक्सप्रेशन में ये बन जाएगा ऊपर को, नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई. तो इसको देख के आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है हमेशा. ऊपर नीचे वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, डिस्क है ना. इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव. और जो इंटीरियर पार्ट है डिस्क का उसमें ये पॉजिटिव है. और एक्स बाउंड्री पे ये 0 है. ये बन रहा है ना, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिस इज 0 एंड दिस इज f. दिस f is 0 on boundary. तो वैलिड है मैक्सिमम प्रिंसिपल. मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहाँ मिलता है? बाउंड्री पे. तो ये कहता है कि बाउंड्री पे 0 है फंक्शन और अंदर पॉजिटिव है. क्या ऐसा हो सकता है? क्या 0 पॉजिटिव से बड़ा है? ये बन गया ना, बाउंड्री पे 0 है. तो अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल वैलिड होता, बाउंड्री पे 0 है अंदर पॉजिटिव है फंक्शन. और फंक्शन f क्या है? जो भी सोल्यूशन होगा u कह लो आप इसको. f नहीं कहना, u कह लेते हैं हम. तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा ना मैक्सिमम प्रिंसिपल. सो ऑन द बाउंड्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. और ये भी है एक पॉइंट ये भी है 1. अगर 1 x 1 होगा जो एक्सेप्ट 1 0 एक्सेप्ट पॉइंट 1 0 where f is not defined. Sorry, where u is not defined. 1 0 पे तो डिफाइन भी नहीं है ना.
डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा ना, x इक्वल टू 1 हो रही। तो अब सर आप 0/0 फॉर्म नहीं बन जाएगी 1/0 पे? हाँ नॉट डिफाइन, हाँ ठीक है, 0/0 ठीक, नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? सो अब कंक्लूड क्या करोगे? द मैक्सिमम प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड, क्योंकि बाउंड्री पे मैक्सिमम मिलेगा ना। अब होल्ड क्यों नहीं हो रहा है ये मैक्सिमम प्रिंसिपल? एज f इज नॉट इवन कंटिन्यूस ऑन गिवन डोमेन। जो भी हमारा डोमेन था डिस्क, उस पर इवन ये कंटिन्यूस भी नहीं है। तो अब मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? u इज ए सोल्यूशन ऑफ हार्मोनिक इक्वेशन, है ना। u सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा था ना, u x x प्लस u y y इक्वल्स टू समथिंग 0। तो अब u को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो इसका मीनिंग क्या है? कंटिन्यूस तो है ही एटलीस्ट वो, तभी तो 2 बार डिफरेंशिएबल करोगे आप। और कंटिन्यूस नहीं है तो आप डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते ना। सो डज नॉट होल्ड, यानी कहने का मीनिंग है ये जो फंक्शन है आपका u, ये सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब कोई लैपलेस का हो ही नहीं सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इवन इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कोई u वैसे ही कोई फंक्शन है आपको दे रखा है, बट दिस डज नॉट सेटिस्फाई दी, it cannot satisfy Laplace equation, so it cannot attain maxima on boundary। ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए मैं नहीं कह सकता कि उनका मैक्सिमा बाउंड्री पे मिलेगा। मैक्सिमा बाउंड्री पे कब मिलेगा? जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ऐसा एक रिजल्ट आपने वहां पे पढ़ा था, रॉन्स्कियन वाला, याद है कि अगर सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन हो, सेकंड ऑर्डर ओडी का सॉल्यूशन हो फंक्शन आपका, जो आपने पढ़ा था d2y/dx के, सो that satisfy the second order OD if and only if जो Wronskian था that is never 0 or it is identically 0। तो वो जो रिजल्ट था that is true when you talk about solution of a differential equation second order। आप हर एक फंक्शन को लिए नहीं लगा सकते। सेम वे में यहाँ पे है, आप ये नहीं कह सकते आपको कोई भी फंक्शन दे दे, कोई भी डोमेन दे दे, तो आप ये आपको कोई कहे कि इसका मैक्सिमा निकालो, तो आप बाउंड्री उस पे निकालना उसका शुरू कर दो। ठीक है, इट मे बी ट्रू फॉर सम फंक्शन बट इट इज ट्रू। अब यहाँ पे तो है कि ये लैप्लास को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इट इज इवन नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, अगर करता तो फिर मैक्सिमा कैसे निकालते? फिर मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हो? डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव सर। कैसे? एक हीट में एक प्रॉब्लम थी आपके ट्यूट में, शायद करना उसको जरूर। हीट इक्वेशन में 1-2 एग्जांपल हैं, इफ टाइम परमिट्स वी विल डू इट एट द एंड। आप देखना नोट्स में जो हीट वाला चैप्टर दिया था उस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है जो जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट। हाँ, तो आपने मैक्सिमम मिनिमम प्रैक्टिकली निकाल के बताना कि निकालना कैसे है। वो डेरिवेटिव टेस्ट ही है, वो सेकंड डेरिवेटिव उसी से निकालना है आपने। ठीक है, जो आप +2 वगैरह में करते थे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। ये ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हाँ, निकाल के फिर क्रिटिकल उसके पॉइंट ऊपर। निकाल के वैसे, हाँ वैसे ही करना है आपने। अब ये तो सेटिस्फाई नहीं करता तो नहीं, बट कई प्रॉब्लम में तो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा ना, तो फिर आपको वो कहेगा कि निकाल के बताओ कि मैक्सिमम निकालना कैसे है आपने। सो जस्ट अप्लाई दैट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर हमारा टाइम से कंप्लीट होगा वी विल टेक 2 एग्जांपल, बाकी अब ट्यूट में करना मैडम के साथ। लगता है ट्यूट ना? यस सर। गिव इट ट्राई। आज एग्जाम है।